So many students get stuck at band 5 or 5.5 in their IELTS reading. Today I'm going to explain the difference between the 5 or 5.5 band approach to a 9 band approach. So don't miss this video, watch this video till the end for maximum benefit. So here we have an IELTS Cambridge book and reading passage number 2. If you can complete section 1 in 15 minutes with all accurate answers, then congratulations, your start is very impressive and very good. You can even score band 9 with the approaches that I'm going to teach you in this video throughout. So let's, first of all, your main task is you have to look at the various types of questions you have in your reading passage number 2. Basically, in reading passage number 2, this video is all of you. Even if you are a beginner or a repeat test taker, this video will definitely help you to improve your reading score to a great extent. Only if you will watch this video till the end. So in reading passage number 2, in section number 2, basically you will get 3 different types of questions. सबसे पहले you have to identify these types of questions, which types of questions you have been given in your IELTS reading section 2. For example, in this test, we have 14 to 18, which paragraph contains following information. This is called magic information type of a question, right? And after this, if we go on further, we have matching the list of people. This is called matching the writer's opinion types of questions. And we have 19 to 23 these questions. And after that, the third type we have sentence completion, summary completion. This is called summary completion. And in section 2, this format is quite mainly in trend in these during these exam days and exam months. So if you are also looking for the perfect IELTS reading tips, tricks and hacks, this is the ultimate video you have come across. So सबसे पहले, if you have given these 3 types of questions, so इसको आपने from a band 5 की approach किया है and band 9 की approach किया है, you have to understand the difference. If you are a band 5.5 or a 6.6 band student, what you will do, you will start doing this passage in order. You will start from question number 14, then 80, then you will do list of people, then do the summary completion questions. But if you are smart enough, if you are a 9 band student, what approach you will use is what I'm going to teach you in this video. So सबसे पहले we will start straight away with one word questions, that is matching the information summary completion types of questions. Summary completion is always easy to score, easy to find out the answers, and it takes less time. You can complete these 3 questions in only 1 to 2 minutes. So let's start without wasting a single moment. You have to read the instructions. They are saying one word only, first of all. Second important thing is, as these are the last question types of this section 2 passage, so mainly the thing is about the location. First thing is you should know where is the location. Once you find the location easily, you will be able to find all 3 answers in a quick minute. So important thing is you have to look for the location. Sometimes it happens in summary completions in section 2 and section 3 even, you waste a lot of time just finding out the location. So stop wasting your time finding out the location. I'm giving you 2 simple tricks. You can use these 2 simple tricks to find out the location within seconds. First trick is, if the questions are in the ending, the main possibility is either these blanks will be in the ending of the passage or these will be in the middle of the passage. Start looking for these locations from the ending of this passage, firstly. Second important thing is, you have to mark down the keywords. Keywords are always the game changer. Look for the keywords, but you also have to pay close attention to the synonyms. So here you have some summary completion lines. Can you identify the keywords? If you can identify the keywords, kindly drop down what according to you should be the keywords that we will look for, that we can scan for in the passage, and we can easily find out the equation within some few seconds. Drop down your keywords in the comment section below. अगर आपको keywords को find करना आता है, then again second step आपका जो है वो चढ़ चुके हो. पहला step होता है कि आपने location ढूंढ ली. सेकेंड स्टेप होता है कि क्या आपने सही कीवर्ड्स को आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा. बिफोर यू लुक फॉर द कीवर्ड्स, योर मेन अगेन task is you have to at least read the passage name.
पैसेज का नेम आपको पता होना चाहिए. पैसेज नेम इज द रिटर्न ऑफ द एलम. दैट इज इट. आपको नो नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे. पैसेज का नाम रीड करिए, दैट इज इनफ फॉर यू. अब हमारे पास एक पैसेज है, इसमें से अगर मैं बोलूँ कि कीवर्ड्स फाइंड आउट करो तो सबसे पहला कीवर्ड ये मैं करूँगी फाइंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का सेम टू सेम ही मिल जाएगा. इट इज पॉसिबल कि आपको इसका सिनोनिम मिल जाए. पहला कीवर्ड. दूसरा कीवर्ड मैं यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ ब्रॉन्ज एज. तीसरा कीवर्ड मैं यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ 18th सेंचुरी. चौथा कीवर्ड आई कैन मार्क हियर इज कटी साक्स डैश डैश जो भी है. अब जो यहाँ पे 100 ऑफ ईयर्स एक आपको नंबर दे के रखा और एक 18th सेंचुरी दे के रखा गया है, दीज आई कॉल्ड व्हाट आई कॉल द न्यूमेरिकल कीवर्ड्स. न्यूमेरिकल मतलब जो वर्ड्स नंबर के साथ रिलेटेड हैं, दोज आई कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीवर्ड्स. इनको लोकेट करना बहुत इजी होता है. एंड 18th सेंचुरी में कौन से ईयर्स आते हैं, इफ यू नो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई वांट टू चेक कि कितने स्टूडेंट्स को कितनी ऑडियंसेस को पता है कि कौन से ईयर्स आते हैं 18th सेंचुरी में. तो देखो ये मैंने आपको बता दिया. नाउ आवर टास्क इज we will find out the location of first of all की summary completion की जो location है वो location कहाँ पे है. ओके मैंने क्या बोला, आपने एंडिंग से ढूंढना है, इसको स्टार्ट करना है. तो एंडिंग आपकी हो रही है जी वाले पैराग्राफ से. अब अगर आप जी को आपने क्या करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ 5.5 बैंड टू अ 9 बैंड. Don't read अकेला word, single word. Just scan for the keywords you just have marked down from the summary completion questions. जो आपने keywords को mark करा उनको स्कैन करो, ढूंढो, नजरों से सिर्फ ढूंढो, फटाफट से ढूंढने की कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा था उसमें कुछ है ऐसा. मेरे को यहाँ पे कटी साख नजर नहीं आया. मेरे दिमाग में क्या था, कटी साख था या 18th सेंचुरी था, यहाँ पे नहीं नजर आया. मैं आगे चली जाऊंगी. मैं उसके बाद जी हो गया, मैं ई पर एफ पढ़ूंगी. एफ भी मेरे पास कटी साख नहीं है, कोई मेरे पास ईयर दे के नहीं रखा है, 18th सेंचुरी के नहीं रखा है. विल मूव ऑन फर्दर. ई में मैं देखूंगी कोई ईयर नहीं दिया हुआ, 17,000 दे के रखा गया है कुछ, बट यहाँ पे कटी साख कुछ नहीं है. और डी में अगर मैं जाऊँ, यहाँ मेरे को कटी साख मिल गया और यहाँ पे मेरे को मिल गया ब्रॉन्ज एज मिल गया मेरे को, राइट. और यहाँ पे मेरे को मिल गया एक 19th सेंचुरी मेरे को यहाँ पे मिल गया. सो पॉसिबिलिटी की है कि यहाँ पे आपको सारी लोकेशन यहाँ पे. और फॉर सेंचुरीज अगर आपको पता हो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को क्या बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज, सेंचुरी. 100 को हम बोलते हैं कि सेंचुरी है, ठीक है. तो दैट मीन्स इसी में ही आपकी लोकेशंस हैं. अब आपको वंस यू फाइंड दी लोकेशन कहाँ पे है, इट विल टेक हार्डली 2 minutes टू सॉल्व डाउन ऑल दीज ब्लैंक्स. अब ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए, इफ यू आर अ वीक स्टूडेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक आर ऑलवेज 100% synonyms. So now let's start solving these blanks, and you also have to side by side comment down your answers in the comment section, and you can also cross check कि आपका level क्या है. if you have already booked your exam, इससे आप अपना खुद का level भी check कर सकते हो कि आपकी सोच में क्या difference है and मेरी सोच में क्या difference है. आप कैसे सोच के reading करते हो और मैं कैसे सोच के reading करती हूँ. Think it as if you are a 5.5 band student, you are a 5.5 band thinker, I am a 9 band thinker. You have to compare the thoughts, you have to compare the strategies, you have to compare the methods that I am using to solve these blanks. So for hundreds of years, आपको for centuries ये मिल चुका है. The only tree that was more popular in Britain than alum was dash. अगर मैं इसका मीनिंग समझाऊं ऊपर से, the only tree मतलब एक ऐसा ट्री जो पॉपुलर था ब्रिटेन में एलम से भी ज्यादा, देन आ गया DHAN, देन एलम वॉज डैश. मतलब आपने यहाँ पे सिंपल आंसर क्या आएगा, एक ट्री का नाम. अगर आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो लोकेशन आपको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नो, ये सिंपली नो कि यहाँ पे एक ट्री का नाम आंसर आ सकता है. इसके बाद आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो काफी सारे जो 5.5 बैंड स्टूडेंट्स जैसा सोचते हैं उनके लिए, ठीक है. सिंपली हियर मींस कि आपने एक ट्री का नाम ढूंढना है. आपको पता है लोकेशन डी में है. सो रियल एलम अ क्लोज सेकंड टू ओक डैश 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 डैश. पहली लाइन में आपका इसका आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड जो आपको लगे कि ट्री का नाम है, ट्री का नाम आपका आंसर होना चाहिए. तो ट्री का नाम यहाँ पे क्या है, ओक इज द नेम ऑफ द ट्री. तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओक. मैंने क्या बोला था कि जो आपका आंसर है वो ट्री का, द ओनली ट्री that was more popular than alum was dash dash dash. तो क्या हो गया इसका आंसर, ओक. और एक और चीज यहाँ पे मैं वोकैबुलरी बताने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ ऑलवेज, क्योंकि सभी को पता है वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है. तो जब भी मैं रीडिंग करवाती हूँ मेरे को ना
थोड़ा सा वोकैबुलरी पर नोटिस मैं ज़्यादा इसमें करती हूँ. सो एलम रैन अ क्लोज सेकेंड टू ओक. बहुत ही ये ना अच्छा एक फ्रेज है, अच्छा एक इडियोमेटिक लैंग्वेज है जिसको आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो. एलम रैन अ क्लोज सेकेंड टू ओक मतलब द ओनली ट्री दैट वाज पॉपुलर देन एलम. मतलब देन एलम अ क्लोज सेकेंड. अ क्लोज सेकेंड मतलब पहला इंपॉर्टेंट क्या था, ओक था. दूसरा क्या था, एलम. एलम रैन अ क्लोज सेकेंड, सेकेंड था, इससे इंपॉर्टेंट क्या था, ओक था. ठीक है, तो ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इसको आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो. सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओक. आपको पता चल गया, इसका आंसर इज ओक. राइट. तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो. ओके, सो द 24th आंसर इज ओक. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 25th क्वेश्चन यहाँ पे. तो इट डिपेंड्स, अगर आपने ऊपर का पढ़ना है, ऊपर का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. टू सेव योर टाइम यू ओनली नीड टू नो दैट द कीवर्ड हियर इज ब्रॉन्ज एज. दैट मींस जो आपका आंसर है वो ब्रॉन्ज एज के आगे होगा, इसके पहले नहीं होगा. और यहाँ पे एक और लिखा चीज वेपन्स, तो इसके नीचे आंसर होगा, इसके ऊपर आंसर आपका नहीं होगा. इन द 18th century it was grown to provide wood for boxes and dash. मतलब इन 18th सेंचुरी में ये उगाया जाता था वुड देने के लिए फॉर बॉक्सेस एंड व्हाट. बड़ा कीवर्ड इज यहाँ पे एंड. मतलब सिंपल यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये वुड प्रोवाइड करता था किस चीज के लिए. एक तो है बॉक्सेस के लिए, दूसरी किस चीज के लिए, वुड प्रोवाइड करता था. तो हमें यहाँ पे सेम टू सेम मिल गया. इन दी 18th century it was planted more widely and its wood भी मिल गया, was used for items such as स्टोरेज क्रेट्स मतलब बॉक्सेस, एंड का सेम मिल गया, एंड फ्लोरिंग. वेरी सिंपल. इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई होप आपने सभी ने इसका आंसर सही ढूंढ लिया होगा. बहुत ये इजी आंसर था, तो आई विल नॉट टेल दिस आंसर, यू विल हैव टू कमेंट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो नेक्स्ट इज ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ. इसकी स्ट्रेंथ के कारण Alum was often used for mining equipment and the Cutty Sarks dash was also constructed from alum. Again, सबसे important चीज होती है demand of the question and understanding obviously is very important. अब एक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी जिसके वजह से एलम था वो ऑफन यूज होता था माइनिंग इक्विपमेंट्स के लिए. एंड दी कटी साक्स डैश, जो कटी साक्स का क्या है, was also constructed from the alum. मतलब क्या बनाया जाता था, एक तो माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे और इसके अलावा क्या बनाया जाता था, फ्रॉम दी एलम से क्या बनाया जाता था. सो लेट्स लुक फॉर दी आंसर. तो यहाँ पे लिखा है कटी साक आपको बहुत इजीली मिल गया. लेट्स लुक यहाँ पे क्या आएगा. सो इट वाज सूटेबल फॉर आइटम्स दैट एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट मतलब स्ट्रेंथ, एंड वाज यूज्ड टू बिल्ड द किलन of the 19th century sailing ship Cutty Sark as well as mining equipment. अब अगर आपको let's say sometimes क्या होता है कि आपको लाइन या लोकेशन डिफिकल्ट लगती है बट आपको आंसर समझ में नहीं आता कि आंसर क्या होना चाहिए. इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत सिंपल. जो आपको वर्ड्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए हैं वो वर्ड आंसर में नहीं आ सकता. जो वर्ड मिसिंग है और जो आपको लगता है कि डिमांड के साथ फिट हो रहा है सिर्फ वो वर्ड आ सकता है. राइट. अब हमने क्या ढूंढना था कि जो कटी साक्स डैश, कटी साक्स का क्या, was also constructed from the alum. कटी साक की कोई ऐसा चीज जो बनती थी from the alum. आपको सिनोनिम्स दे के रखे गए होते हैं हमेशा, यू नो, तो आपको पता है कि एक लास्ट लाइन में इसका आंसर है. तो जो सारे वर्ड्स दे रखे हैं, टिक दोस वर्ड्स. जो नहीं दे रखा उसमें से कोई ना कोई एक वर्ड इसका आंसर होगा. तो आपको ये 19th सेंचुरी आपको वो टाइम देके रखा गया है, सेलिंग शिप कटी साल देके रखा गया है, एज वेल मतलब एंड हो गया, माइनिंग इक्विपमेंट आपको देके रखा गया है, वाज बिल्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो कौन सा वर्ड देके नहीं रखा गया, कील. बिल्ट दी कील, क्या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट वहां पे लिखा था, यहाँ पे कील लिखा हुआ है. सो द आंसर इज कील. सो आई गेस आपको ये ट्रिक समझ में आ गई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स समरी कंप्लीशन या ब्लैंक्स इजी नहीं होती या आपको समझ में नहीं आते, तो ये एक ट्रिक है. जो वर्ड्स क्वेश्चन के साथ मैच हो जाएं, सिनोनिम्स मैच हो जाएं, जो दिया गया होगा तो वो तो आंसर होगा ही नहीं, जो रह गया दैट विल बी द आंसर. तो ये हो गया इतना इजीली आपने जो है इस तरीके से इसको करना है समरी कंप्लीशन को. अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है
या तो आप कर लो ये वाली मैचिंग इंफॉर्मेशन पहले, या तो आप ये कर लो लिस्ट ऑफ पीपल। अगर आप मेरी बात मानो तो लिस्ट ऑफ पीपल विल बी मोर मतलब टाइम सेविंग अगर आप इसको पहले कर लेते हैं। ये करने भी ज़्यादा इजी होते हैं, इसमें ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी 2 बार बना चुकी हूँ, बट दिस इज दी अगेन अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैं इसकी आपको ये समझाऊंगी जरूर। एक मेरा और ओपिनियन है, एक थॉट है 9 बैंड वाला, कि 9 बैंड वाले की सोच कैसी और कहाँ पे वो है, वो काम करती है। सो सबसे पहले आपके पास 3 नेम्स है, मैट एलियट, केरन रूसल एंड पीटर बॉर्न। 3 आपके पास नेम है, तीनों के तीनों नेम्स हमेशा इन ऑर्डर होते हैं। यू हैव टू जस्ट लुक फॉर द नेम्स सबसे पहले। तो मतलब अगर आप लास्ट में हो तो मैं लास्ट से भी करना इसको शुरू कर सकती हूँ। यहाँ पे लास्ट मेरे पास जी है, तो जी में जो मेरे को मिलते हैं मैं साथ में इसको मार्क कर लूंगी। रूसल मेरे को मिल गया एक, जस्ट सेकेंड, तो मेरे को रूसल मिल गया एक। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इलियट मिल गया, फिर मेरे को एंटी में भी इलियट मिल गया। तो जो नेम जितनी बारी दिया हो उतनी बारी अपने वो नेम को मार्क करना होता है। सेज रूसल, यहाँ पे मेरे को रूसल मिल गया, राइट। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये रहा बॉर्न, पीटर बॉर्न से, जहां पर भी है उसको अपने मार्क जरूर कर लेना है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये रहा पीटर बॉर्न दिया हुआ है आपको, राइट। तो ये डी वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं ब्लैंक्स में सारा, तो ये आपने देखना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये अगर मैं सी देखूं, सी में हमारे पास बात कर रहा है केरन रूसल, ये दिया हुआ है आपके पास। उसके बाद देखिए रूसल सेज, भी दे के रखा गया आपके पास। तो और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे पता है रूसल का नाम दे रखा है तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। तो फिलहाल ये 2 यहाँ पे नजर आया, कहीं और है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि मैम यहाँ पर भी था। ओके, तो ये बी में अगर मैं देखूं, बी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बी में नहीं है। और ए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है सेज मैट एलियट। ओके, so once we have marked down and located for all the list of people, second step is we have to mark down the keywords. We have to read all the questions and mark down the keywords. बहुत important चीज है ये, बहुत important है, ठीक है। तो that means सबसे पहले अगेन keywords जो है आपको गेम चेंज करके रख सकते हैं अगर आपको पता है कि keywords को मार्क कैसे करना है। तो you may use, यहाँ पे लिखे any letter more than once, तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। कॉमन सेंस है, आपके पास पीपल के नेम ही 3 है, क्वेश्चंस आपके पास 5 हैं, राइट। तो ये रिपीट होंगे नेम्स, व्हाट ऑब्वियस। अब इसको कीवर्ड्स को मार्क करना और कैटेगराइज करना इज दी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये लिस्ट ऑफ पीपल और इनको सॉल्व, मैचिंग दी इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है, राइट। तो अगर मैं पहले ये आपको सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स सी, if a tree gets infected with Dutch elm disease, the damage rapidly becomes visible. तो ये हमारा जो पैसेज है सारा का सारा वो डच एलम डिजीज के बारे में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके अलावा कीवर्ड्स को मार्क करने हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो डैमेज होता है वो विजिबल हो जाता है, इतनी चीज। इट मे बी बेटर, अब यहाँ पे ग्रामर की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बेटर टू वेट एंड सी if the mature elms that have survived continue to flourish. mature elms की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, जो survive कर चुके हैं वो continue flourish कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। keywords वो उतने ही मार्क करो कि जितना मार्क करने से आपको सारा का सारा सेंटेंस का क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। there must be an explanation की बात कर रहे हैं for the survival of some mature elms, survival की बात कर रहे हैं, mature elms के बारे में टॉपिक है ही है। we need to be aware of the insects carrying Dutch elm disease are not very far away. You understand the effect of Dutch elm disease has had ये पास्ट की बात कर रहे हैं। when you see evidence की बात कर रहे हैं of how prominent the tree once was grammar की बात कर रहे हैं, past tense की बात कर रहे हैं। अब prominent एक word नोट कर लेना, अगेन prominent का मतलब होता है बिग कह सकते हो या इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। इस वर्ड को आप राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप इज कैटेगराइजिंग दी क्वेश्चंस, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको एक थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक मेथड ये है कि जिस पर्सन का नेम आपको सबसे कम बार दिया हो ना, उससे ढूंढना शुरू करो। ये अगर आप 5 बैंड वाले बच्चे हो ना, क्या करोगे, ए से शुरू हो जाओगे, A B C D E F N G H, आप ऑर्डर वाइज को करना शुरू कर दोगे। नो, बट अ बैंड 9 अप्रोच सेज कि आपने सबसे पहले वो पर्सन का नेम उठाना है जिसका नाम ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बार दिया गया हो, उसको आपने पहले पढ़ लेना है, राइट।
जिसका नेम सबसे ज्यादा बार दिया हो उसको आपने रखना ही एंडिंग में है। दैट इज इट। इतनी ये सिंपल एंड टाइम सेविंग टेक्निक है ना, विद इन 2 सेकंड्स आपको ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगर मैं देखूं मैट इलियट, तो इलियट आपको एक लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है और आपको ये एक स्टार्टिंग में दे रखा है, राइट। केरन रूसर 1-2 टाइम्स दे के रखा गया है और आपको ये 4 टाइम्स केरन रूसर भी दे के रखा गया है। पीटर बॉन की बात करूं तो सिर्फ आपको ये EFE में ही पीटर बॉन दे के रखा गया है, दैट इज इट, ठीक है। अगर मैं पीटर बॉन की बात करूं, सिर्फ आपने अब लिस्ट ऑफ पीपल में क्या होता है, आपने सिर्फ कॉमर्स की लाइन पढ़नी होती है, कॉमर्स वाली लाइन पढ़ो, दैट इज इनफ, और स्पीड से पढ़ना होता है। एंड अगर आपको पढ़ के समझ में आ गया इट्स ओके, अगर नहीं आया मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू मार्क डाउन द कीवर्ड, यू हैव टू मैच द कीवर्ड एंड द सिनोनिम्स नाउ। अब अगर मैं पीटर बॉन के बारे में आपको दिखाऊं, अब पीटर बॉन के बारे में हमारे पास जो लाइन सिर्फ कॉमर्स में हमने वही पढ़नी, ये लाइन कॉमर्स में है, I saw Dutch elm disease unfold as small boy, ऐसा कुछ मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। The elm seemed to be a part of rural England के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये भी लाइन मैच नहीं कर रही। Today the city of Birmingham's elms total about 17,000 local factors appear to have contributed to their survival, something like ऐसा कुछ बात करें, बट इसमें मेरे को आंसर नहीं मिल रहा एक, ठीक है। ये हो गया, नहीं मिला आपको आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और लाइन है, ये रही नेक्स्ट लाइन, लास्ट एक लाइन से इस बॉर्न आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, द बीटल कैन जस्ट मार्च इन, जो बीटल है वो अंदर आ सकती है, मार्च इन अंदर आ सकती है, इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं है, एज द थ्रेट इज राइट ऑन आवर डोर स्टेप। ये इतनी बात कर रहा है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, यू जस्ट हैव टू मैच डाउन द कीवर्ड्स, ठीक है। जो बीटल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, इफ वी आर नॉट केयरफुल, that is right on our doorstep, right on our doorstep। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड एक मार्क किया था ऑलरेडी, अवेयर, मतलब अगर आप केयरफुल नहीं हो तो एलम कैरिंग डिजीज, बीटल की बात कर रहे हैं, नॉट वेरी फार अवे, एट आवर डोरस्टेप, सिनोनिम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीटर बॉन, इसका आंसर सिंपली आपका सी आ जाएगा। ये इतने इजी होते हैं इनको सॉल्व करना, ठीक है। दैट मीन्स कि सी अब और हमारा रिपीट नहीं होगा, सी हमारा 2 बार ही दिया गया था, हमने वो सारा पढ़ लिया, किसी और के साथ मैच नहीं हो रहा, तो सी किसी और का आंसर नहीं आएगा। दैट मीन्स जो हमारे 4 क्वेश्चन रह गए उसमें से ए और बी ही रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर अब मैं बात करूं तो मैट इलियट जो है हमारे पास एक नीचे देके रखा गया है, एक हमारे पास ऊपर देके रखा गया है। रूसल हमारे पास 4 बार है, तो कम हमारे पास क्या है, मैट इलियट। तो मेरा पर्पस क्या रहेगा, सिर्फ मैं मैट इलियट को पढ़ लूंगी और उसके बेस के ऊपर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दी लोकेशंस एंड दी आंसर्स। अब यहाँ पे सेज मैट इलियट, यहाँ पे कॉमर्स में लाइन है, यू लुक एट ओल्ड फोटोग्राफ्स फ्रॉम 1960s, ट्राई टू मैच द कीवर्ड्स। आपके दिमाग में यहीं तक एक कीवर्ड आ जाना चाहिए, एंड इट्स ओनली देन दैट यू रियलाइज द इम्पैक्ट एलम्स हैड। पास्ट की बात कर रहे हैं, दे वर सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, लार्ज ट्रीज बिग, दे वर गॉन, दे वंस वॉज। हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास पास्ट की बात कर रहे थे। सो लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो यहाँ पे हमें दे रखा है अंडरस्टैंड डच एलम डिजीज हैड, उनका एक इफेक्ट था। एविडेंस मतलब फोटोग्राफ्स फ्रॉम 1960s, कितने ट्रीज प्रोमिनेंट होते थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैट इलियट हमारा था ए, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। बट अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, हमारे पास जो इलियट है वो हमारे पास यहाँ पर भी है, लास्ट वाले पैराग्राफ में भी हमारे पास इलियट है। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर रिपीट होगा ही होगा, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, एटलीस्ट इसमें एक आंसर और जरूर मैच करेगा ही करेगा, राइट। यहाँ है सेज इलियट, यहाँ है सेज इलियट। तो ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन दी फेस ऑफ, जैसे आप बोलते हैं राइटिंग में ये लिखते हो टास्क 1 में एकेडमिक वाले, अपेरेंटली इट इज क्लियर दैट, या आप ऐसा कुछ यूज करते हो, तो ये दिस इज द फ्रेज, यू कैन यूज दिस इन द स्पीकिंग एज वेल, in writing task 1 as well, on the face of it, मतलब देखने से हमें पता चल रहा है, ऊपर से एनालाइज करने से we can say that। तो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ तो वोकैबुलरी वर्ड्स में साथ में बताती रहती हूँ, इनको आप जरूर नोट कर लिया करो, आपके बहुत काम आती हैं। So on the face of it, it seems like a good idea, says Eliot। तो यहाँ पे मेरे को कुछ खास लगा नहीं फर्क, कुछ मेरे को मिला नहीं आंसर, तो ये एक और है, sometimes the best thing you can do is just give nature time to recover, over time you might get resistance। मतलब समटाइम सबसे अच्छी जो चीज है वो क्या है कि जस्ट आप नेचर को टाइम टू रिकवर करने के लिए, एंड विद टाइम
यू माइट गेट रेजिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आप बताओ अब कौन सा और इसके साथ जो आंसर है वो मैच हो रहा है, राइट। अब देखो हमारे पास ही मैट इलियट ए की बात कर रहा है, तो एक तो हमने 23rd लास्ट वाले का आंसर हमने ए लगा दिया था, अब एक और इसके साथ मैच हो रहा है, इसका आंसर हम ऑलरेडी ए लगा चुके हैं, इसका आंसर हम सी लगा चुके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास बचे 3 क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आ गया इट्स वेरी नाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया ट्राई एलिमिनेटिंग दी रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें से अब ए का आंसर और कौन सा हो सकता है? ठीक है, इट मे बी बेटर टू वेट एंड सी, मतलब नेचर को सम टाइम दो, थिंग्स हैव सर्वाइव टू फ्लरिश, दैट मींस 20th का आंसर आपका एक और ए मैच हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, 19th आंसर बच गया और 21 बच गया, तो चुप करके केरन रूसल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप 5 बैंड वाले बच्चे हो तो आप इसको भी पढ़ोगे, अकेले अकेले को पढ़ोगे, हमने सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, ये 5 बैंड की चीजें और 9 बैंड में ये डिफरेंस होता है, तो मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं, मैं इसका आंसर भी बी लगा दूंगी, मैं इसका आंसर भी बी लगा दूंगी, दैट इज इट, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, 3 पढ़ने की जरूरत है ही नहीं थी। सो दिस इज द ट्रिक है इसमें, मेरे पास एक और भी थी बट वो अगर तब होती अगर मैं केरन रूसल को पहले पढ़ लेती तो, बट हमने केरन रूसल को पहले नहीं पढ़ा, ये 4 बार दे रखा था, इसको पढ़ो ही मत, जो दे रखा है जो इजी था वो हमने कर लिया एंड दैट इज इट, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आई गेस आपको ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगी, आई एम डैम श्योर। एंड अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, आपको समझ में आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड हाइप भी कर दिया करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक आपके लिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहती है कि अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है मेरे चैनल की तो राइट, सो कंटिन्यूइंग बैक हमारे पास एक लास्ट चीज रहेगी, अब मैचिंग द इंफॉर्मेशन। अब ये भी करना मतलब विद इन सेकेंड्स का ये काम है। अब यहाँ पे ये लिखा एनी यूज मोर देन लिटिल मोर देन वन, आपको दे के रखा गया है ऑलरेडी। अब इसमें होगा क्या, बहुत इजी ट्रिक्स लगेंगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है, यू हैव टू रीड दी क्वेश्चंस एंड मार्क डाउन द कीवर्ड्स। अब 5 बैंड वाला बच्चा क्या करेगा, आपको पहले एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको ढूंढने लगोगे और पैसेज ए पढ़ लोगे, बी पढ़ लोगे, सी पढ़ोगे, डी पढ़ोगे, जो मैच हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो यू हैव टू, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। तो 9 बैंड अप्रोच क्या है, सारे क्वेश्चंस ये आपने इकट्ठे पढ़ने होते हैं, सभी में से इकट्ठे कीवर्ड्स को मार्क करना होता है, फिर आपने पैसेज पे जाना होता है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चंस एज वेल। सो रेफरेंस टू अ रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की दैट अराइज फ्रॉम देयर बीइंग ओनली अ फ्यू सर्वाइविंग लार्ज एलम्स। सबसे बड़ा कीवर्ड ओनली अ फ्यू सर्वाइविंग लार्ज एलम्स, इतना भी ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा। डिटेल्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतना बड़ा कीवर्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके, मतलब ओपिनियन का डिफरेंस है। अब ओपिनियन का डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि 2-3 लोग हैं, 2-3 लोगों के बीच में ओपिनियंस का डिफरेंस है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसने क्या बोला कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स किसी एक पैराग्राफ में 2-3 लोगों ने एक चीज को लेके अपने ओपिनियंस दिए होंगे। अगर आपने ध्यान से इस चीज को नोट करो, ये बहुत अच्छी बढ़िया नेक्स्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे अकेला मैट इलियट था, नीचे कुछ भी नहीं था, सी में केरन रूसल है और दूसरा कोई नहीं है, डी में कोई नहीं था, ई में हमारे पास सिर्फ पीटर बॉरन था, एफ में हमेशा सिर्फ हमारे पास रूसल था, जी में रूसल भी है, इलियट भी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात होगी, बहुत ऑब्वियस इसमें होगी, किसी और में तो 2 पीपल की बात एक साथ कर ही नहीं रहे हैं। ये होता है दिमाग को यूज करना, ये होती है 9 बैंड वाली अप्रोच। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के ही मेरे को पता लग गया कि इसका आंसर जी है, इट इज दैट इजी, मतलब अगर ये इसको बोलते हैं 9 बैंड की अप्रोच। सो रेफरेंस टू हाउ डच एलम डिजीज वाज ब्रॉट इनटू ब्रिटेन, ब्रिटेन में कैसे आई थी, a description of the conditions that have enabled a location in Britain की बात करें to escape the Dutch elm, escape भी जरूरी है, location in Britain, 2 यहाँ पे कीवर्ड जरूरी हैं। Reference to the stage at which young elms become vulnerable to the Dutch elm disease, मतलब एक ऐसी स्टेज जहाँ पे जो young elms हैं वो डिजीज को और कैच करने की वो नजदीक आ जाते हैं। vulnerable होता है कि और prone, कि इनको खतरा और थ्रेट उनका बढ़ जाता है कि इनको ये डिजीज हो सकती है।
किस स्टेज पर हो सकती है, उस स्टेज की बात किस स्टेज पर हो सकती है, ये स्टेज, दिस इज द इम्पोर्टेंट कीवर्ड। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया ना, एक बार कीवर्ड्स को मार्क कर लिया, तो एक बार इसको रिवाइज कर लो कि यहाँ पे ओनली अ फ्यू सर्वाइविंग एलम्स की बात कर रहे हैं। ये तो हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो हम 15 वाला हमने देख रहे हैं, ये हम कर ही चुके हैं। सो ब्रॉट इनटू ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, कंडीशंस, एक लोकेशन की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल, एस्केप कर लिया उन्होंने, एस्केप मतलब वो बच गए, उन्होंने सर्वाइव कर लिया, और एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो बात कर रहे हैं ऐसी। ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट से करना, हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं ए में जाऊं, अब आपने करना क्या होता है, फर्स्ट एक लाइन पढ़ लो, एक आप लास्ट लाइन पढ़ लो, दैट इज इट। मैं आपको साथ में करके बताऊंगी आपने 9 बैंड वाली अप्रोच इसमें यूज क्या करनी है। अगर मैं होती तो मैं इसको कैसे करती, मैं बता रही हूँ 9 बैंड वाला मेथड। अगर आप 5 बैंड वाले बच्चे, आप लोग क्या करते हो, around 25 billion elms accounting for 90% of all elm trees in the UK died during 1960 and 70s of Dutch elm disease। अगर आप भी यही टेक्निक यूज करते हो तो कमेंट में बताना यस मैम हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड, ऐसा आपने नहीं करना। फटाफट से यार 25 मिलियन, हमें ऐसा कोई कीवर्ड था ही नहीं क्वेश्चन में, तो 90% कोई नंबर न्यूमेरिकल कीवर्ड था ही नहीं, इसमें कुछ होगा ही नहीं हमारे पास। इसके बाद ये जो लोकेशन आप एक बार यूज कर चुके हो, दोबारा वो लोकेशन यूज होती ही नहीं है, दैट मीन्स ए में कोई आपका आंसर मैच करेगा ही नहीं। अब फटाफट बी पे आ जाओ। अब बी में वो क्या बात कर रहे हैं, द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंगस दैट ब्लॉक्स द एलम्स वेस्क्यूलर डैश डैश डैश। मेरे को कुछ नहीं पता, खत्म हो गया यहाँ पे, मेरे को कुछ यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे कनाडा की बात कर रहे हैं और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट एपिडेमिक, जहाँ में पंक्चुएशन मार्क्स होती है, उस लाइन को पढ़ना जरूरी है। A first epidemic जो अकर हुआ 1920 में gradually died down, but 70s a second epidemic was triggered by shipments of alum from Canada। Canada में जो shipments हुई from Canada, वहाँ से second epidemic जो शुरू हुआ। This time सारा पढ़ने की नीड नहीं है, जो कॉमर्स में है उतना ही पढ़ो। This time the Peters carried a much more virulent strain that destroyed the vast majority of Britain elms। तो आपको अगर पता समझ में आ गया, कीवर्ड्स को फटाफट से मैच करो, स्ट्राइक करो अपने माइंड में कि हमने ऐसा कहाँ पे पढ़ा था, कौन सा कीवर्ड, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा मैच हो रहा है। अब यहाँ पे हम 15th वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ट्राई टू एलिमिनेट दी रॉन्ग ऑप्शन। रिसर्च प्रॉब्लम की बात करी, हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, हाउ डच एलम डिजीज वर ब्रॉट इनटू ब्रिटेन, ब्रिटेन में कैसे आई, यही हमने पढ़ा ना। सेकेंड ट्रिगर कब हुआ, 1970 में हुआ, और एट दैट टाइम वो ब्रिटेन में डच एलम को उसने डिस्ट्रॉय किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। 15 का हमने जी लिखा था, उसका आंसर हमारा बी आ जाएगा। ये इतना ईजी होता है करना। ठीक है, आप भी इसको इसी मेथड से ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इससे क्या कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, बी पढ़ लिया। अब हम सी पे जाएंगे। अब सी में देखो, सी में हमारे पास अगर मैं इसको रीड करूं तो हमारे पास क्या लिखे रखा गया है। सिर्फ आपने क्या करना है, स्टार्टिंग की एक लाइन और कॉमर्स की लाइन आपने पढ़नी है। तो कॉमर्स की लाइन मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा कॉमा। सो वंस द ट्रंक ऑफ द एलम रीचेस 10 to 15 सेंटीमीटर्स और सो, ऐसा कुछ इन डायमीटर्स, इट बिकम्स अ परफेक्ट साइज फॉर बीटल्स टू ले एग्स एंड फॉर द फंगस टू टेक होल्ड। फंगस लग सकती है। ठीक है, मतलब इस स्टेज पे आके जब जो एलम है इतना साइज का हो जाता है, तो इस स्टेज पे आके उसका साइज इतना परफेक्ट हो जाता है कि बीटल्स एग्स ले करना शुरू कर देते हैं और फंगस लगनी उनको शुरू हो जाती है। तो ऐसा हमने कहाँ पे, क्वेश्चन कौन सा इसमें मैच कर रहा है, एट दिस स्टेज। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें आपका सी का आंसर आपका इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सी में हमारे पास अब 2 पैसेजेस हैं। ऊपर का पढ़ के हमने लगा दिया आंसर, अब हम नीचे भी पढ़ के थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें भी कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर उसने बोला यू कैन रिपीट द आंसर मोर देन वंस, तो दैट मींस एक ना एक आंसर तो रिपीट होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। बी तो था ही छोटा सा, उसमें कोई रिपीट हुआ नहीं। सी में चांसेस हैं कि मे भी इसमें एक और आधा जो है वो आपका रिपीट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे रीड करूं, यहाँ पे है nevertheless, opportunities are limited as the number of these mature survivors is relatively small। जो mature survivors हैं वो relatively small हैं। relatively small का सिनोनिम कहाँ पे है, आपने पढ़ा था a few number of surviving, जो mature हैं, जो survive कर गए हैं, वो कम है। इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा। तो हमने 15 भी कर ली, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हमारा हो गया और हमारा ये भी हो गया। तो हमारा कौन सा रह गया, सिर्फ हमारा 17 अब रह गया। तो देखो ये मेरी ट्रिक्स हैं, ये कितना हम टाइम इसमें कम लगा रही हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए।
ठीक है। अब आगे मैं ट्रिक्स बताऊंगी। अब ये हो गया हमारा, सी में हमने पढ़ लिया। डी में हमने ब्लैंक्स करी थी, छोटा सा 4 लाइनों का ये पैसेज था। इसमें ना ही आपकी वो था लिस्ट ऑफ पीपल, ना ही इसमें वो कोई मैचिंग इन्फॉर्मेशन होगा, इसको आपने पढ़ना ही नहीं है। और पीटर बॉर्न में हमने पढ़ा था ये वाला, ये लाइन हमने पढ़ ली थी, सेज पीटर बॉर्न, हमने ये कर लिया था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक तो इसका आंसर या तो ई में हो सकता है, और एफ में, जी में हमने ये कर लिए थे 2 वाले अपील वाला, ये इसमें एक हो चुका है, तो इसमें भी इसका पॉसिबल आंसर नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, एक मेरे अकॉर्डिंग आपका ये जी रहता है। अब जी में हमने सिर्फ क्या करना है, कॉमा की लाइन को पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टुडे द सिटी ऑफ ब्रिंगटन, एक लोकेशन की बात कर रहे थे ना ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रिटिश कल्चर की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। Total alum of about 17,000 local factors appear to have contributed to their survival. मतलब सर्वाइव करके लोकल फैक्टर्स जो है उसने कंट्रीब्यूट किया टू देयर सर्वाइवल। हमारा क्वेश्चन जो बचा था वो क्या था, अ लोकेशन इन ब्रिटेन, लोकेशन की बात कर रहे थे जो दैट हैव एनेबल्ड टू एस्केप, मतलब जो सर्वाइव कर गए थे। तो जो हमने अभी पढ़ा, हमने आई थिंक डी वाला पढ़ा, तो इसका आंसर आपका डी का, सॉरी ई पढ़ा, इसका आंसर हमारा ई मैच हो जाएगा। सो दिस इज हाउ, ये ट्रिक्स है, अगर आपने इसको नोटिस कर लिया तो आपका इसके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज यू कैन री वॉच दिस वीडियो, रिव्यू दिस वीडियो वंस अगेन। जो मैंने यहाँ पे ट्रिक्स लगाई, जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई, उनको कॉपी में एक नोट कर लो कि सेकेंड सेक्शन को सॉल्व करने के ये ट्रिक्स हैं। अगर आपके पास मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल एंड जो ब्लैंक्स है, ये आपको अगर क्वेश्चन टाइप्स आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करने का ये आपके पास परफेक्ट इजी मेथड है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी सारा पसंद आई होगी। If so, like this video, share this video, hype this video, and do not forget to subscribe and join this channel for maximum benefit. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.